So very good evening, all the participants. Today we'll study the concept of related parties. We have already covered up to section 5. From section 1 to section 5, we covered in the first session. And I hope we have shared the recording also in the group. So now let us see this concept of related party and why it is important. I hope my screen is visible. Is it visible? Illustrations for related parties. Right? So you can write in the chat box. I hope it is visible. Is it visible? नहीं तो अपने को अनम्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. Yes, sir, it is visible. Yes, yes, okay, okay. So first things first. Related party, it appears at various places. Can you tell me what is the importance of this related party? Why it is important to study this concept? Sheetal ji, any idea why it is important? Um, Why we are reading the concept of related parties? The concept of related party is important because there is a propensity to favor the related parties. Directors may be having some related parties, company may be having some related parties which are relatives of directors, and they may have a tendency to favor them. So we have to look back whether any favor was granted to any of the related parties. This is one of the concepts, right? So this is why it is important to read this concept of related parties. Now, we will be concentrating only on one section today, section 5, subsection 24. And I hope you are having a copy of the Bear code with you. Always try to sit with the laptop, right? So that you can open your own copy of the Bear code. Copy of the Bear code I have already shared with you, soft copies. Now, in order to be covered under section 524, what is the first condition? First condition is that there has to be a corporate person on at least one side. If there are non-corporate persons on both sides, then the relationship shall not be covered under section 5 subsection 24. So once we are sure that there is a corporate person on at least one side, we have to ensure that either party is able to control or influence the business decisions, right? Which could be by virtue of relationship. Suppose somebody is a relative of the director, then there is a tendency to favor that person. It could be by virtue of shareholding. Somebody is having more than a particular percentage of shareholding, so he may affect the decision making process. Similarly, ownership, control, decision making ability. So all these are things which may affect the business decisions. So that is why it is important to read this concept of related parties. Now, if we read sub clauses A, B and C of section 5 subsection 24. So they are relatively simpler relationships. So let us see sub clauses A, B and C by way of illustrations. Now what clause A says? Section 5 subsection 24 subsection A. A director or a partner of the corporate debtor. Right? So it says a director or partner of the corporate debtor or a relative of a director or partner of the corporate debtor, right? So if there is a company and you are a director or partner, so there is a deeming fiction that you are related to that CD. Or if you are a relative of director or partner, right? Now, where from you will get the definition of relative? The definition of relative is given here, right? So these are the various types of relationships which are covered here.
I have tried to explain by way of an illustration that XYZ is a private limited company. So its director is a related party. Then relative of director of XYZ private limited is also a related party. Right? Similarly, in case of LLP, partner of LLP is a related party and relative of partner of XYZ LLP is also a related party. Right? Simple relationship. Now, second is key managerial personnel of the corporate debtor or a relative of KMP. So, KMP or a relative of KMP. Now, first of all, we have to see whether KMP is defined in IBC. The answer is no. The definition of KMP is not given in IBC. It is given in Companies Act. So, Companies Act, what Companies Act says for KMP? And where it is given? K Key managerial personnel, section 2, subsection 51. So if we see section 2, subsection 51 of Companies Act, it says key managerial personnel in relation to a company means the chief executive officer or the managing director or the manager, the company secretary, the whole-time director, the chief financial officer, such other officer not more than one level below the directors who is in whole-time employment designated as KMP by the board and such other officer as may be prescribed. So this is the definition of KMP which is given in Companies Act. Right? So KMP of the CD or relative of KMP. Right? In case of LLP, KMP of LLP or relative of KMP of LLP. Now C. C is a limited liability partnership or a partnership firm in which a director, partner or manager of the corporate debtor or his relative is a partner. So who is covered? LLP or partnership firm. So on the one side is an LLP or partnership firm and on the other side is the CD, right? And because this relationship we are seeing in relation to the corporate debtor. जैसे सेक्शन 524 हम शुरू करते हैं, सेक्शन 524 क्या बोलता है? रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू ए कॉर्पोरेट डेटर मींस, ठीक है? तो एक तरफ क्या हो गया? एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म और दूसरी तरफ कौन है? उस डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर ऑफ द सीडी और हिज रिलेटिव इज ए पार्टनर, ठीक है? तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में हो जाएगा? उस कंपनी और उस एलएलपी के बीच में। एग्जांपल दे दिया, डायरेक्टर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड का और तो वो जो एलएलपी है जिसमें ये डायरेक्टर पार्टनर है तो वो सीडी और वो एलएलपी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, ठीक है? या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ये डायरेक्टर जो है पार्टनर है तो वो दैट पार्टनरशिप फर्म एंड दैट सीडी विल बी रिलेटेड, ठीक है? पार्टनर ऑफ XYZ LLP, तो LLP जिसमें वो पार्टनर है या पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है। इसी तरह से मैनेजर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ पार्टनर, रिलेटिव ऑफ मैनेजर, ठीक है? ये सारे रिलेशनशिप, ये सिंपल टाइप के रिलेशनशिप्स है। नाउ सब क्लॉज ये हो गए A, B और C। नाउ D एंड E। डी और E में क्या है? दीज कवर केसेस वेयर ए डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स होल्ड्स मोर देन 2% शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। दो चीजें हैं, डायरेक्टर और उसकी रिलेटिव्स की कंबाइंड शेयर होल्डिंग देखनी है अपने को और कितनी होनी चाहिए? मोर देन 2%। डायरेक्टर भी होना चाहिए और शेयर होल्डिंग भी देखनी है। ऐसा केस हो सकता है डायरेक्टर है लेकिन शेयर होल्डिंग नहीं, तो इस क्लॉज में कवर नहीं होगा, ए में कवर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर शेयर होल्डिंग मान लो 5% है और डायरेक्टर नहीं है तो फिर इस क्लॉज में कवर नहीं होगा। डी क्या है? ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर,
पार्टनर और मैनेजर ऑफ द सीडी इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स, दोनों चीजें जरूरी है, साइमल्टेनियस कंडीशन है, ठीक है, डायरेक्टर भी होना है और होल्डिंग भी होनी है, कितनी, मोर देन 2%, एग्जैक्टली 2% भी होगा तो भी नहीं होगा रिलेटेड पार्टी। तो सब क्लॉज डी कवर्स केसेस इन विच शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स इज मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, ए पब्लिक कंपनी, डी में क्या था, प्राइवेट कंपनी, और ई में क्या है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इन विच द डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स विद रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी में, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड में क्या लिखा था, वहां लिखा था शेयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में नॉर्मली कॉल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, टोटल मनी एक ही बार में पेबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा हो सकता है कि पेड अप कैपिटल डिफरेंट है और इशू डिफरेंट, तो यहां पर पेड अप कैपिटल दे दिया, ठीक है। तो सब क्लॉज ही कवर्स केसेस इन विच शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर along with his relatives is more than 2% of the paid up share capital of the public company. In clause E, the term used is paid up share capital as against share capital in clause D, ठीक है। ये एग्जांपल्स है सारे। उसके बाद में F 524F, 524F क्या बोलता है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो वर्ड यूज किया गया बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट सर में क्या होता है, सर कंपनी इसमें एक होगी क्वेरी है। और, हाँ जी, अगर ये एक क्वेरी था, अगर ये एग्जैक्ट 2% है तो विल तो इट नहीं कवर? होगी, तो कवर नहीं होगा। वर्ड लिखा है मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब एग्जैक्ट 2 तो नहीं होगा ना, फिर 2 और मोर लिखता हूं, ओके। ठीक है। एफ में क्या लिखा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट्स ऑन द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। तो यहां पर वर्ड यूज किया गया बॉडी कॉर्पोरेट। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, यहां क्या यूज किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है, इट इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर कोई कॉमन डायरेक्टर वाली कॉन्सेप्ट भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, ना शेयर होल्डिंग है, लेकिन रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट whose board of directors, managing director or manager in the ordinary course of business acts on the advice, directions or instructions of a director, partner or manager of the corporate data. तो यहां पर शेडो डायरेक्टर है। Another important thing to note is acting in the ordinary course of business and not under any special circumstances or in a professional capacity. तो here it could be difficult to prove such a connection. अब इसमें क्या होगा, जैसे प्रेस रिपोर्ट, आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप ये दे रहे हो कि भाई देखो ऐसा है कि वी हैव एंटर्ड इनटू ए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद दिस पार्टी, है ना, और उसमें फॉरेन पार्टी का नाम है, तो उससे क्या होगा, ये प्रूव होगा कि भाई ये इन दोनों का कुछ बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। डायरेक्टर नहीं है, ना शेयर होल्डिंग है, ना कॉमन डायरेक्टर है, लेकिन आपकी एक्टिविटी से ऐसा प्रूव हो रहा है कि वो जो फॉरेन कंपनी है और आपकी कंपनी जो है उसमें कुछ रिलेशनशिप है। पॉइंट जी क्या है, 524 जी, एनी एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म हुज पार्टनर्स और एम्प्लॉइज, तो यहां पर वर्ड एम्प्लॉय भी ऐड हो गया। अब देखो इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है ना। ए से हमने कहां से शुरू किया था, डायरेक्टर या पार्टनर से, फिर उनके रिलेटिव्स, फिर और आगे चले गए हम शेयर होल्डिंग पर आ गए, शेयर होल्डिंग के बाद हम आ गए रिमोट कंट्रोल पर, अब यहां एम्प्लॉयज भी आ गए, ठीक है। पार्टनर्स और एम्प्लॉयज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट्स ऑन द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। कई बार क्या होता है, एक कंपनी होती है और एक पार्टनरशिप फर्म भी सेम प्रेमिसेस से चल रही होती है, ठीक है, साइनिंग अथॉरिटी सेम होती है, तो इसका ये मतलब मान लिया जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टीज। तो सब क्लॉज जी में द वर्ड एम्प्लॉय हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम
Another important thing is in the ordinary course of business. अब ये भी जो है, it would not be easy to establish, but an inference could be drawn from the premises in which the business is being run. एक ही बिजनेस प्रीमिसेस से दोनों रन हो रहे हैं. फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, साइन वाउचर उसके पार्टनरशिप फर्म के भी वही साइन कर रहा है और कंपनी के भी वही साइन कर रहा है ना, या सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट्स. तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टीज. नेक्स्ट देखते हैं एनी पर्सन. अब यहां पर यूज किया गया एनी पर्सन. एनी पर्सन की डेफिनेशन हमने पहले ही देख चुके हैं, है ना. पर्सन की डेफिनेशन कहां आती है आपकी, सेक्शन 5 में आ रही, 3 में आ रही, 3 में आ रही मेरे हिसाब से. पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन आती है आपके सेक्शन 3 सबसेक्शन 23 में. तो वहां क्या आ रहा है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, LLP और एनी अदर एंटिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर ए स्टैट्यूट एंड इंक्लूड्स ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो ये पर्सन की डेफिनेशन है. तो यहां पर LLP या पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं है, हो सकता कोई ट्रस्ट भी हो, है ना, हो सकता कोई HUF हो. तो यहां सारे इंक्लूड कर लिया. एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द CD इज अकस्टम्ड टू एक्ट. ठीक है. तो ये वर्ड यूज करता है यहां पर पर्सन. पर्सन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, HUF भी आ सकता है, ट्रस्ट भी आ सकता है. और द टर्म अकस्टम्ड टू एक्ट, ये भी IBC में डिफाइंड नहीं है, ना ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है. लेकिन इसका क्या मतलब है, अकस्टम टू एक्ट मतलब है हैबिचुअल टेंडेंसी टू फॉलो एंड ओबे द एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस. ठीक है. जैसे मान लीजिए डायरेक्टर है एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड का, ये क्या करता है, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पर्सन. तो वो पर्सन और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों रिलेटेड पार्टीज हो जाएगी. ठीक है. I 524I क्या बोलता है, ए बॉडी कॉर्पोरेट विच इज ए होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएट कंपनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और ए सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी टू विच द कॉर्पोरेट डेटर इज ए सब्सिडरी. तो यहां पर डीमिंग फिक्शन है. अगर होल्डिंग सब्सिडरी है या दोनों कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी है, जो इसको को सब्सिडरी कहते हैं, तो उन सब केसेस में ये मान लिया जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टीज. Here the body corporate is a holding subsidiary or an associate of the CD, or both the body corporate and the corporate debtor are subsidiaries of a holding company. तो होल्डिंग कंपनी ऑफ द CD रिलेटेड पार्टी हो गई, सब्सिडरी कंपनी है रिलेटेड पार्टी हो गई, एसोसिएट कंपनी है रिलेटेड पार्टी हो गई, को सब्सिडरी है तो भी रिलेटेड पार्टी हो गई. ठीक है. और चेक क्या करना है, वो कहता है कि कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. भाई होल्डिंग सब्सिडरी कैसे आप प्रूव करते हो, इफ यू कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या मोर देन 50% शेयर कैपिटल यू आर होल्डिंग ऑन इट्स ओन और अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज, है ना, या फिर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग होल्डिंग एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो फिर एसोसिएट कंपनी. तो ये डेफिनेशन सारी कहां दे रखी है, कंपनीज एक्ट पे. ठीक है. भाई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी क्या है, इफ यू कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल यू आर हैविंग ऑन योर ओन और अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज. तो ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गई. और एसोसिएट में क्या है, इफ यू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग होल्डिंग एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल. तो इन सारे केसेस में ये रिलेटेड पार्टी. नेक्स्ट देखते हैं जे, एनी पर्सन हु कंट्रोल्स. यहां पर भी फिर दोबारा वर्ड क्या लिखा गया, एनी पर्सन. तो एनी पर्सन में क्या आ जाएगा, HUF भी आ जाएगी, ट्रस्ट भी आ जाएगा, सब आ जाएगी. एनी पर्सन हु कंट्रोल्स मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स इन द कॉर्पोरेट डेटा ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग एग्रीमेंट. ठीक है. तो जे और के जो है ये दोनों सिमिलर है. जे भी क्या है, एनी पर्सन इज कंट्रोलिंग, और के क्लॉज में क्या है, CD इज कंट्रोलिंग, और हु इज कंट्रोलिंग, एनी पर्सन. और कंट्रोल जो है इट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कंट्रोल क्या करना है, वोटिंग राइट.
राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी टू वोट इन एनी मीटिंग और बाई पोस्टल बैलेट। कितना कंट्रोल करना है? मोर देन 20%। एंड हाउ इट इज टू बी कंट्रोल्ड? ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एनी पर्सन हु कंट्रोल्स, जैसे मान लीजिए एक एचयूएफ है, ठीक है, एचयूएफ में 4 को पार्टनर्स हैं, चारों के पास 6% की शेयर कैपिटल है। अब उन्होंने आपस में वोटिंग अरेंजमेंट कर रखा है कि भैया जब भी वोटिंग करेंगे एक पर्टिकुलर मैनर में वोट करेंगे। ठीक है, तो वो जो करता है वो क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी हो, वो एचयूएफ रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है मोर देन 20% वोटिंग राइट्स। 6 के मिला के 24 हो गए ना चारों के। वो ओनरशिप की वजह से भी हो सकता है या वोटिंग एग्रीमेंट की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि एनी पर्सन इन हुम द कॉर्पोरेट डेटर कंट्रोल्स। अब ये सीडी कंट्रोल कर रहा है उस पर्सन में, क्या कंट्रोल कर रहा है? मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग एग्रीमेंट। तो हु इज कंट्रोलिंग? सीडी। कंट्रोल कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एंड व्हाट इज टू बी कंट्रोल्ड? वोटिंग राइट्स। And who could be controlled? Anyone whose decisions are taken by way of voting. ठीक है, and how much is to be controlled? More than 20%. And how it is to be controlled? On account of ownership or voting agreement. नेक्स्ट आ गया एल, एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल। यहां पर वर्ड क्या लिखा? कैन कंट्रोल। पहले वालों में क्या लिखता था? हु कंट्रोल्स। यहां पर वर्ड कैन आ गया। कैन का मतलब एबिलिटी टू कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली हो या ना हो डिफरेंट है। सो स्ट्रेस इज ऑन एबिलिटी टू कंट्रोल, यूज ऑफ द वर्ड कैन। एक्चुअली सच एबिलिटी मे और मे नॉट बी एक्सरसाइज्ड। तो एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉरस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, और गवर्निंग बॉडी होती है बॉडी कॉर्पोरेट में। जैसे मान लीजिए कोई अथॉरिटी है तो उसमें गवर्निंग बॉडी होती है, कंपनी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हु इज कंट्रोलिंग? एनी पर्सन। व्हाट इज बीइंग कंट्रोल्ड? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉरस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी ऑफ द सीडी। एंड हाउ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुड बी कंट्रोल्ड? भाई बोर्ड का कंपोजिशन कैसे कंट्रोल करोगे? व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, और डिफरेंस क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी में? इन केस ऑफ कंपनी इट इज बीओडी, इफ इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन ए कंपनी इट इज द गवर्निंग बॉडी। ठीक है, एंड स्ट्रेस इज ऑन द एबिलिटी टू कंट्रोल, यूज ऑफ द वर्ड कैन। एक्चुअली सच एबिलिटी मे और मे नॉट बी एक्सरसाइज्ड। एम, एम क्या है? एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस। वर्ड क्या लिखा? पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी मेकिंग कमेटी बना रखी है, ठीक है, उसका जो भी मेंबर है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। पार्टिसिपेशन है यहां। उसके बाद हैविंग मोर देन 2 डायरेक्टर्स इन कॉमन बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच पर्सन। एक सीडी है और दूसरे एक और कंपनी है, दो उसमें 2 डायरेक्टर कॉमन है, मोर देन 2 डायरेक्टर्स कॉमन है, तो वो दोनों जो एंटिटीज है वो रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच पर्सन। तुम मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाता हूं, तो ये भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटा। कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है ना, कोई टेक्निकल सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, इसेंशियल होनी चाहिए, इसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो टू हो चाहे फ्रॉम हो द कॉर्पोरेट डेटा, तो उस केस में भी रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन से ये आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये हो गया हमारा रिलेटेड पार्टी। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि भाई ये पता कैसे चलेगा हमें रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कंपनीज जो है दे आर रिक्वायर्ड टू गिव रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 AS 18 में रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है।
उसके बाद जिस कंपनी के साथ आपका रिलेशनशिप है वो आप एमसीए के रिकॉर्ड में भी रहता है कि किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो वो भी शेयर होल्डिंग वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप उस कंपनी से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो अगर आपको शक है कि वो रिलेटेड पार्टी है। कुछ केसेस में आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। कुछ केसेस में शेयर होल्डिंग भी नहीं है। जरूरी नहीं कि सब जगह शेयर होल्डिंग की या डायरेक्टरशिप की रिक्वायरमेंट है। अगर शेयर होल्डिंग या डायरेक्टरशिप होगी वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो उस केस में फिर आप कोई प्रेस रिपोर्ट के बेसिस पर, या फिर आप दोनों एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट है, या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोई हेल्प कर रहा है, तो इन सब फैक्ट्स के बेसिस पे आप रिलेटेड पार्टी प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जो थ्रेशोल्ड है वो डिफरेंट है। रिलेटेड पार्टीज के लिए जो लुक बैक पीरियड है इंसॉल्वेंसी में 2 साल है नॉर्मली, और अदर रिलेटेड पार्टी के लिए 1 साल है। ऐसा नहीं है कि रिलेटेड पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इवन ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी पीरियड भी आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई बार नहीं है। लेकिन उसमें सीओसी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी पीरियड, ठीक है। बाकी और हाँ हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है पहले। अब हम चलते हैं। यस, सर, कैन आई इंटरप्ट? यस, यस, यस प्लीज। Okay, sir, related party, हाँ, person who influence the decision, like हाँ, whether financial or management decision, हाँ, or any decision which have substantial हम्म, effect on the company's going concern or day-to-day activities. We can consider that person as related party, हम्म, right? हाँ बिल्कुल ठीक है। Right. Okay. So, that type of person might not be on the paper because राइट, neither बट इट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। circumstantial evidence, हाँ, circumstances, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा। exp- हाँ, hmm. हाँ, Right, जैसे right, मान लीजिए कि भाई ठीक है hmm. वो उसी प्रीमिसेस में बैठता है, Right. Hmm. सारे डॉक्यूमेंट्स पर वो साइन करता है, नहीं भी साइन करता तो सब चीजों में उसकी नोट जरूरी है। Yes. कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझ करके वो लोग पेपर पर नहीं आते हैं। वो कहेगा भाई हाँ. पेपर तो मैं कोई साइन नहीं करूंगा, लेकिन Hmm. क्या है कि भाई देखो मित्तल साहब है, मित्तल साहब के बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता कंपनी में, Hmm. ऐसा एक टेंडेंसी है। तो वो मित्तल Hmm. साहब जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। बराबर. हाँ, तो वो Yes, sir. प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन प्रूव कैसे Hmm. होगा? अब प्रूव के लिए तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे जो भी होंगे। Hmm. 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 कुछ Okay, तो sir. क्या होगा कि डायरेक्टिव रिलेशनशिप है, ठीक है। मान लीजिए Hmm. डायरेक्टर है या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है तो डायरेक्ट हो गया। मोर देन 2% शेयर कैपिटल है तो ये तो कंक्रीट Hmm. एविडेंस है इसका, ठीक है। Hmm. Hmm. इनमें तो कोई दिक्कत Yes. नहीं है। लेकिन Hmm. कई जगह पर क्या होगा कि भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के Yes. लिए आप क्या करोगे? देखो जी सेम प्रीमिसेस में बैठता है, इसकी डिसीजन के बिना कोई काम नहीं होता, है कि Hmm. नहीं। Hmm. तो Hmm. वो Hmm. चीज Yes, sir. Okay. है। Thank you, sir. हाँ जी। अब चलते हैं हम सेक्शन 6 पर। तो सेक्शन 5 तक हमने कवर कर लिया था। अब हम एक बार सेक्शन 6 पर चलते हैं। वो अपडेट बेयर कोड वाली पीपीटी में निकालता हूं। ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर हमने की हुई है। कौन गया? हम्म, अच्छा उसको हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन वाली पीपीटी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है आज ग्रुप पे, ठीक है। अब ये अपडेट ड्यू बेयर कोड, ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो इसमें हमने क्या किया है कि इन दिस पीपीटी वी हैव इंक्लूडेड नॉट ओनली द कोड बट रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो। ये पूरे का पूरा सिलेबस है, बेयर कोड है एज पर आवर
सिलेबस। इसके बाद में भी चेंजेस आई हैं, लेकिन वो चेंजेस हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है कि हमने इंटरलिंक कर दिया है इसको, सेक्शन को रेगुलेशंस के साथ में। तो अप टू सेक्शन 5 वी हैव कवर्ड। नाउ लेट अस गो टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है? एक मिनट। person who may initiate corporate insolvency resolution process. हाँ, ये क्लियर है, नजर आ रहा है आपको? ये सर पर थोड़ा साइड में कट हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको ना, ये आप ठीक है? यस, अभी ठीक है सर। अब ठीक है ना? हाँ। तो यस। सेक्शन 6, वो जूम ज्यादा हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। सेक्शन 6 बोलता है पर्सन्स हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब वर्ड क्या लिखा? पर्सन्स। पर्सन्स क्यों लिखा? पर्सन भी लिख सकता था। पर्सन्स इसलिए लिखा कि ऐसा भी सर्कमस्टांस हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग, देयर कुड बी सिचुएशन वेयर कलेक्टिव एप्लीकेशन में बी प्लेस्ड। वो अब फिर सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, इसीलिए वर्ड लिखा पर्सन्स। और पर्सन में कौन कौन आ गए ये हमने पहले ही पढ़ लिया, सेक्शन 3 सब सेक्शन 27 में। सेक्शन 3 सब सेक्शन 23 में हमने पढ़ लिया पर्सन कौन है। ठीक है। और यहां वर्ड लिखा पर्सन्स, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा पर्सन्स हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो पर्सन्स हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स ए डिफॉल्ट। अच्छा, एक ये बात ही बताइए कि क्या कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन एक ही बात है या डिफरेंट है? ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। कॉर्पोरेट पर्सन और कॉर्पोरेट डेटर एक ही बात है या डिफरेंट है? और अगर फर्क है तो क्या फर्क है? कॉर्पोरेट पर्सन आपका डिफाइंड है सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 में, और कॉर्पोरेट डेटर डिफाइंड है सेक्शन 3 सब सेक्शन 8 में। तो कॉर्पोरेट डेटर तो वो है हु ओज ए डेट टू एनी पर्सन, जिसने किसी के पैसे देने हैं वो कॉर्पोरेट डेटर है, और जिसने किसी के पैसे नहीं देने वो कॉर्पोरेट पर्सन है। ये दो डेफिनेशन क्यों रखी, कॉर्पोरेट पर्सन और कॉर्पोरेट डेटर? क्योंकि वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस भी हमने पढ़ना है, और वॉलेंटरी लिक्विडेशन में तो पैसे देने नहीं है उसने किसी के, है ना, लेकिन फिर भी लिक्विडेशन प्रोसेस होगा, उसका वॉलेंटरी लिक्विडेशन होगा। इसीलिए वहां पर जब आप वॉलेंटरी लिक्विडेशन वाले प्रोविजंस पढ़ोगे तो वहां वर्ड यूज किया जाएगा कॉर्पोरेट पर्सन, और जहां डिफॉल्ट की बात होगी वहां यूज किया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर। क्लियर है? यस। तो पर्सन्स हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पर्सन्स क्यों लिखा मैंने बता दिया, पर्सन्स क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटा कमिट्स ए डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी जरूरी है, ट्रिगर पॉइंट क्या है? डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट नहीं होगा तो इनिशिएट नहीं होगा प्रोसेस। ठीक है। ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर और द कॉर्पोरेट डेटा इटसेल्फ। हमने तीनों डेफिनेशन पढ़ ली। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? जिसने लोन दिया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? जिसने गुड्स या सर्विसेज दी हैं, या जो एम्प्लॉई है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है। और द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट होना जरूरी है। अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। और कौन लोग प्रोसेस इनिशिएट करेंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। अब आ गया हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है? इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, ये वर्ड इनिशिएशन क्यों यूज करते हैं हम? व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड इनिशिएशन? काजल किरण जी, ये वर्ड Filing of the documents of initiation process to start the हाँ, process of filing देखो documents. हमारे हाथ में इनिशिएशन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस एप्लीकेशन को माने ही नहीं,
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना। तो हम तो क्या है, सिर्फ फाइलिंग कर सकते हैं, एडमिट करना ना करना वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम है। इसीलिए वर्ड लिखा गया इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और इसमें कौन करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, हमने पहले पढ़ लिया मोटी मोटी भाषा में। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, जिसने लोन दिया है या जो होम बायर है, आप ऐसे समझ लीजिए, होम बायर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है ना। ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली, ठीक है, सिंगली या जॉइंटली। इसीलिए वर्ड वहां पर क्या लिखा, पर्सन्स, सेक्शन 6 में लिखा पर्सन्स। ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई अदर पर्सन है ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। may file an application for initiating corporate insolvency resolution process against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has occurred। तो क्या क्या कंडीशन दे दी, पहली कंडीशन सिंगली या जॉइंटली, ठीक है, या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, लेकिन उस केस में नोटिफिकेशन इश्यू करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, ये कॉर्पोरेट डेटर के। किसके सामने इनिशिएट हो रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। और कब हो रहा है, जब डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रेफर टू इन क्लॉजेस ए एंड बी ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21। अब सेक्शन 21 तो हमने पढ़ा नहीं, सेक्शन 7 में रेफरेंस दे रहा है सेक्शन 21 का। अब सेक्शन 21 में मैं बता दूं क्या है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो जो डिबेंचर होल्डर है क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, यस और नो। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या नहीं है, यस। है, Yes. बिल्कुल है। अब बात यह है कि क्या एक डिबेंचर होल्डर, मान लीजिए 5,000 डिबेंचर्स इशू किए कंपनी ने, तो क्या 5,000 में से एक डिबेंचर होल्डर इनिशिएट कर सकता है, द आंसर इज नो, क्योंकि उस केस में वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में आएगा। और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए ये कहा कि भाई तुम्हें ये तकलीफ है, 5,000 में से 4,999 तो ठीक है, तुम्हें ही दिक्कत है, उसके लिए कम से कम कितने बंदे होने चाहिए, 100, 100। या फिर नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास विच एवर इज लेस, ठीक है। मान लीजिए, और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में मिनिमम कितने होने चाहिए, 10 से नीचे क्लास नहीं बनेगी, ठीक है। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी मिनिमम 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अभी क्लास बनती कैसे है, क्लास बनती है अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सेम है। मान लीजिए डिवेंचर से चुकी, तो सारे डिवेंचर होल्डर्स की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सेम होगी, तो वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए किसी से, तो वो भी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में आ जाएगा। आप मान लीजिए कंपनी के पास, कंपनी ने कोई शेयर इशू किए, तो उसके पास अंडर राइटर्स है, 10 अंडर राइटर है, तो वो 10 अंडर राइटर भी एक क्लास में आ जाएंगे। लेकिन मान लो 5 ही अंडर राइटर है, तो फिर दे विल नॉट फॉर्म ए क्लास, मिनिमम 10 होने चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, नॉट लेस देन 100 और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द क्लास विच एवर इज लेस। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक क्लास में 10 है, 10 क्रेडिटर है, एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, ठीक है, मान लो मर्चेंट बैंकर्स है या अंडर राइटर्स है, 10 अंडर राइटर है, उन 10 अंडर राइटर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, तो उसमें से कितने इशू कर सकते हैं एप्लीकेशन, एक, ठीक है, 10% हो गया विच एवर इज लेस। लेकिन वो 1 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड भी बीट होना चाहिए। पता चल गया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया क्लास ऑफ क्रेडिटर्स वाला। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में सबसे पहली बात कंडीशन कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कैन बी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। दूसरी कंडीशन मिनिमम 10 होने चाहिए,
अब आप कहोगे ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है भाई, हमें तो बताओ कहाँ लिखी गई है बातें क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में ये जो राम कहानी में बता रहा हूं ये आपको डेफिनेशन में दे रखी है। ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको रेगुलेशंस। तो रेगुलेशन में डेफिनेशन में जब आप जाओगे तो यहां आपको क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की डेफिनेशन नजर आएगी। क्या डेफिनेशन है? क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मीन्स ए क्लास with at least 10 financial creditors under clause B of subsection 6 of section 21 and the expression creditors in a class shall be construed accordingly। ठीक है, ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की डेफिनेशन है। चलिए दोबारा हम सेक्शन 7 पर चलते हैं। तो क्या कहने लगा ये, मिनिमम 100 या नॉट लेस देन 10%। फिर एक और प्रोवाइजो दे दिया, प्रोवाइडेड फर्दर, मतलब सेकंड प्रोवाइजो हो गया। सेकंड प्रोवाइजो में क्या कहा? फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर अलॉटीज अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो अलॉटीज है, अलॉटीज में क्या होगा? एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड जॉइंटली बाय नॉट देन 100 of such allottees under the same real estate project or not less than 10% of the total number of such allottees under the same real estate project whichever is less। अब यहां पर क्या है, यहां प्रोजेक्ट वाइज हो गया, कंपनी वाइज नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, फर्स्ट प्रोविजन में कंपनी वाइज, यहां प्रोजेक्ट वाइज है। एक कंपनी हो सकता है 10 प्रोजेक्ट बना रही हो, तो जिस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है उसी से लेने पड़ेंगे, सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के कितने, कम से कम 100 या नॉट लेस देन 10%। और उसके अलावा आपको 1 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड तो मीट करना ही करना। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एनी, अब ये बातें ये बाद में आई अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब ये अमेंडमेंट आ गई, तो उन्होंने कहा जो पहले से एप्लीकेशन जब आईबीसी आया था तो क्या था, एक तो ये था कि लिमिट हमारी 1 लाख थी। ठीक है, तो क्या होता था, एक होम बायर जिसका 1 लाख रुपए भी ड्यू है वो भी कंपनी का प्रोसेस इनिशिएट कर सकता था अगर डिफॉल्ट हो गया। और एक और बात भी थी, सेक्शन 12A भी नहीं था, तो विड्रॉल भी अलाउड नहीं था। तो एक बार एप्लीकेशन, एक बार सीआईआरपी शुरू हो गई तो वो कहते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो बिल्डर्स लॉबी भी पहुंची गवर्नमेंट के पास, उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी दिक्कत है, 10,000 हमारे फ्लैट ओनर्स हैं, 10,000 में से एक को दिक्कत है, वही कंपनी को बंद करवाने के चक्कर में घूमने लग गया। तो इन्होंने कंडीशन लगा दी, भैया मिनिमम 100 या नॉट लेस देन 10%। ठीक है, अब यहां क्या कहता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द सीआईआरपी अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन फाइल्ड बाय ए फाइनेंशियल क्रेडिटर रेफर टू इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन, जो ऊपर पढ़े हमने, एंड हैज नॉट बीन एडमिटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020। मतलब ये कि एप्लीकेशन पहले लगी हुई है, ये तो बाद में आया, ये अमेंडमेंट बाद में आई, ये 100 वाली और नॉट लेस देन 10% वाली। तो जो एप्लीकेशन पहले की लगी हुई है उनको क्या होगा, उसमें इसने ये कहा कि भाई उन एप्लीकेशन को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड प्रोविजन विद इन 30 डेज। उन्होंने कहा कि एक्ट शुरू होने के 30 डेज के अंदर ये कंडीशंस कंप्लाई करो, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन बिफोर इट्स एडमिशन। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी ने अप्लाई कर दिया, उस टाइम तो एक आदमी की कंडीशन थी, बाद में अमेंडमेंट आ गई 2020 में, इसमें ये कह दिया भाई मिनिमम 100 या नॉट लेस देन 10%। तो उन एप्लीकेशन का क्या होगा जो फाइल ऑलरेडी हो चुकी है और अभी एडमिट नहीं हुई, उन्होंने कहा भाई 30 दिन के अंदर या तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करो या फिर ये एप्लीकेशन विड्रॉन मान ली जाएगी। ठीक है, explanation for the purposes of this subsection, a default includes a default in respect of a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor। ठीक है, मतलब सिर्फ एप्लीकेंट का ही नहीं, किसी दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी है तो भी डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए।
मान लीजिए 25-25 लाख रुपए का 4 लोगों का डिफॉल्ट है, तो क्या एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी या नहीं होगी? शुरू में क्या लिखता है ये? शुरू में लिखता है फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। विष्णु ऑयल मिल्स का केस है जोधपुर हाई कोर्ट का, उसमें यही सेम इशू था कि 25-25 लाख के 4, तो भी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन कैसे लगानी है, उसके लिए आपको क्या है, रूल्स देखने हैं। ठीक है, तो जहां पर भी रूल्स हैं, रूल्स में आपको जाना है, तो रूल में बताएगा कि क्या फॉर्म नंबर लगेगा और कितनी इसकी फीस लगेगी, किस किस को कॉपी देनी है। ठीक है, ये सारा आपको रूल्स के अंदर दिया जाएगा। अब मैं आपको रूल के अंदर ले चलता हूं, वो क्या कहता है, द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड accompanied विथ सच फीस एज में बी प्रेस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब का मैंने आपको बताया था, जहां जहां भी वर्ड प्रेस्क्राइब लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि रूल्स देखने, और जहां वर्ड स्पेसिफाइड लिखा है वहां आपको रेगुलेशन देखना है। ठीक है, तो मैं आपको रूल 4 पर ले चलता हूं, और अब आपको रूल 4 देख करके बताना है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में लगाएगा, कितनी फीस लगेगी, किस किस को कॉपी देनी है, ये सारी बातें। ठीक है, और क्या विड्रॉ हो सकती है नहीं हो सकती, ये सारी बातें, ये रूल 4 आ गया। ठीक है जी, एप्लीकेशन भाई, अब देखो हमने क्या किया हुआ, लिंक किया हुआ है। जैसे हमने वहां क्लिक किया, सेक्शन पर हम थे, उसके बाद ये रूल 4 पर आ गया। अब अगर हमने वापस जाना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करके लास्ट व्यूड कर देंगे। लास्ट व्यूड पर जाएंगे तो दोबारा आपको आपको वही ले जाएगा, सेक्शन 7 पर। ठीक है, अब ये बातें अगर आप बुक खरीदोगे तो बुक के अंदर नहीं दे रखी इस तरह से, तो या अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है तो या तो आप बुक के ऊपर ये मार्क कर लीजिएगा, है ना, फ्लैग कर लीजिएगा, या फिर अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी निकालेंगे तो सॉफ्ट कॉपी में वहां से उसका पेज नंबर लिख लीजिएगा, इस तरह से कर सकते। अगर आप यहीं से पढ़ोगे सॉफ्ट कॉपी से तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको रूल 4 पर कॉपी किया और रूल 4 आ गया अपने आप, और लास्ट व्यूड किया तो वापस वहीं पहुंच गए। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2-3 पन्ने पलट लिए ये वाले तो फिर वापस नहीं जाएगा, ये खाली इसी पन्ने से वापस जाएगा, बाकी पन्नों से वापस नहीं जाएगा। मान लीजिए आपने ये रूल 4 पर गए और आपने आगे के इसके 3-4 पेज पढ़ लिए, फिर ये वापस नहीं जाएगा। तो अब आप ये बताइए मेरे को यहां से देख करके कि ये एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगनी है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर जो एप्लीकेशन लगाएगा कौन से फॉर्म में लगाएगा? Form 1. फॉर्म 1। अच्छा, फाइनेंशियल क्रेडिटर कितने टाइप के होते हैं? अभी हमने सेक्शन 7 में पढ़ा, फाइनेंशियल Two क्रेडिटर types. कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? Two types. कौन कौन से? एक तो होगा, Financial एक तो होगा individual and class of इंडिविजुअल credit. फाइनेंशियल क्रेडिटर, मान लीजिए बैंक है, बैंक ने लोन दे रखा तो वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया। दूसरा हो गया क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। क्लास ऑफ क्रेडिटर मैंने एग्जांपल दिए, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स। और तीसरे कौन से हो गए? होम बायर्स। ठीक है, यही है ना, वो फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो में क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है और सेकंड प्रोवाइजो में होम बायर्स है। अच्छा, ये तीनों टाइप के फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए सेम फॉर्म है या फॉर्म अलग अलग है? Different है sir. डिफरेंट है? सेम सेम फॉर्म है सर। सेम फॉर्म है? तो इससे ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे, तो फॉर्म सेम है, क्लेम फॉर्म डिफरेंट है। हाँ, जैसे claim अगर, form की बात कर रही हूँ सर। हाँ हम तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं ना अभी। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म एक है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म है ना। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर 7 इन फॉर्म 1। और फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो देख लेंगे। और अगर मान लीजिए असाइनी है या ट्रांसफरी है, जैसे कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करता है, अपना डेट असाइन कर देता है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन देखें तो फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन कहां दे रखी है हमारे को? सेक्शन
फाइनेंशियल डेट सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में ही होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल डेट क्या कहता है? फाइनेंशियल डेट means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for the time value of money. ठीक है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने लोन दिया हुआ है, अब आप लोन रिकवर नहीं कर पा रहे, तो कुछ स्पेशल एजेंसीज होती हैं, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, या कुछ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं यार हमें दे दो डेट, हमसे कुछ कमीशन मतलब हम काट लेंगे और हमें दे दो, हम अपने आप रिकवर कर लेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को अपना डेट असाइन कर देते हैं। तो उस केस में फिर वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एप्लीकेशन लगाती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बैंक ए है, बैंक ए ने अपना डेट एआरसी को दे दिया, तो क्या एआरसी एप्लीकेशन लगा सकती है? द आंसर इज यस। Yes. ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आती है। अच्छा, अगर एआरसी एप्लीकेशन लगाएगी तो उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाएगी? एग्रीमेंट देना पड़ेगा सर। हाँ, ये यहां लिखा हुआ है, 4.2 में दे रखा है। 4.2 में क्या दे रखा है? अगर एप्लीकेंट असाइनी है या ट्रांसफरी है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का, तो एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड विद ए कॉपी ऑफ द असाइनमेंट और ट्रांसफर एग्रीमेंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द असाइनमेंट और ट्रांसफर। ठीक है, तो उसको सीए वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इसकी कॉपी किस किस को देनी है? ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी कॉपी किस किस को देनी है? Registered office of the corporator and the board. हाँ, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर पर देनी है और बोर्ड को देनी है। अच्छा, मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस बंद है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर ताला लगा हुआ है, या रजिस्टर्ड ऑफिस किराए का था, अब वहां कोई ऑफिस ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? जहाँ पे मटेरियल बिजनेस उसका ऑपरेट हो रहा था मोस्टली, हम्म। वहां पे या दे फिर क्या सकते है, हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो वो कहता है आप मेल आईडी पे भेज सकते हो, हाँ, डायरेक्टर्स की मेल आईडी इलेक्ट्रॉनिक पर भी भेज मेल्स। सकते हो। अभी पढ़ेंगे हम लोग। द एप्लीकेंट शैल सर्व ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, और वर्ड क्या लिखा? सर्व। सर्व का मतलब सर्विस होनी चाहिए, सर्विस ऑफ नोटिस होना चाहिए। सर्विस ऑफ नोटिस क्या कहती है? अगर कोई नहीं है तो फिर आप उस जगह पर चिपका दो नोटिस। ठीक है। शैल सर्व ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट। यस जन जी। सर एक इसमें क्वेरी है, सपोज देयर आर कंसोर्शियम फंडिंग इज देयर हाँ and one bank has one ARC has taken date of another one bank. Okay. And actually the default is done to another bank. हाँ ठीक So है, in that, so in such case can ARC file the application? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन 7 में लिखा है ना, अभी हमने सेक्शन हाँ 7 में पढ़ा ना। डिफॉल्ट इंक्लूड्स बराबर है। डिफॉल्ट नॉट ओनली ऑफ द एप्लीकेंट बट टू अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑल्सो। अभी हमने So here एक्सप्लेनेशन में पढ़ा ना, बराबर, सेक्शन so 7 का here जो ARC सेक्शन will 7 में come in the एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन a default includes a default in respect of a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any yeah. other financial creditor of the corporate debtor। Right. So एक्सप्लेनेशन ARC में will क्लियरली come लिखा। in the hmm. So हम्म ARC will come in the shoes of financial creditor, हम्म original, हम्म once the assignment is done. Okay. हम्म। ठीक है जी, तो कॉपी भी हो गया। और अगर जॉइंटली है तो उनमें से नॉमिनेट कर सकते हैं वन अमंग्स देम टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, अगर जॉइंटली फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कॉपी लगाई तो फिर एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन तो लगा दी, अब फीस कितनी लगेगी इसमें? एप्लीकेशन के साथ कोई फीस भी लगनी है क्या? फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो फीस भी लगाएगा 25,000 क्या कुछ? 25,000। हाँ,
ये फीस के लिए शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, चाहे सिंगली हो चाहे ज्वाइंटली हो, 25,000। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो 2,000 है, अगर कॉर्पोरेट क्रेडिटर है तो 20,000, ठीक है। ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इन रूल्स के अंदर ही शेड्यूल दे रखा है फीस का, ठीक है। एप्लीकेशन लगा दी फॉर्म 1 के अंदर, कॉपी जिसको देनी है दे दी। उसके बाद क्या विड्रॉल हो सकती है? ये एप्लीकेशन आपने लगा दी, आपको पैसे मिल गए, ऐसा हो सकता है ना। भाई आपने एप्लीकेशन लगाई, सीडी डर गया, सीडी ने सोचा मेरी सीआईआरपी शुरू हो जाएगी, उसने आपको पैसे दे दिए। अब जब आपको पैसे मिल गए, आपको क्या क्या दिक्कत है भाई एप्लीकेशन कंटिन्यू करने में? नाउ यू वांट टू विड्रॉ, तो क्या कर सकते हो आप विड्रॉ? यस सर। यस, आपका रूल नंबर 8 बोलता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे परमिट विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन मेड अंडर रूल 4, 6 और 7 एज द केस में बी ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर इट्स एडमिशन। तो एडमिशन से पहले आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई माई एप्लीकेशन में भी विड्रॉ, ठीक है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएगा तो क्या उसको नाम देना जरूरी है किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, या अपने आप भी एप्लीकेशन लगा सकता है? यस सर, इट्स एसेंशियल। मैंडेटरी। हाँ, मैंडेटरी है। और उससे कंसेंट कौन से फॉर्म में लेगा? फॉर्म 2 में। हाँ, ये आपको ये रूल नंबर 9 में दे रखा है। द एप्लीकेंट वेर एवर इज रिक्वायर्ड टू प्रपोज, और किन किन केसेस में करना है? फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर को। ऑपरेशनल क्रेडिटर में नाम देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है तो उसको फॉर्म देना, नाम देना जरूरी है। और उस नाम देने से पहले उससे कॉन्सेंट लेगा, है ना। कॉन्सेंट कौन से फॉर्म में लेगा? फॉर्म F2 में, फॉर्म 2 में, ठीक है। और इसको एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी accompanied by a सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट जाएगा कंफर्मिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हम अभी फॉर्म 2 देख लेंगे, तो फॉर्म 2 में लिखा हुआ है कि आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। यस जैन जी बोलिए। तो इसका मतलब सर, अनलाइक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सेक्शन 9, यहाँ पर नोटिस देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं, 1 नोटिस देने का कोई फाइल कर। जरूरत नहीं है, और हाँ, डिस्प्यूट का भी कोई सवाल नहीं है। अभी हम राइट 9 राइट। पढ़ लेंगे, 9 पढ़ने के बाद हाँ इसको ठीक है। डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, या श्योर श्योर। बट ये है कि इसमें अगर डिस्प्यूटेड भी है तो भी एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है। इसमें डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं है, डिस्प्यूट का सवाल हम्म, सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर में है, ठीक है। बराबर। ये हो गया। उसके बाद ये हमारा आ गया फॉर्म नंबर 1। जैन जी एक बार म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। या तो फॉर्म नंबर 1 भी देखते हैं एक बारी। फॉर्म नंबर 1 पे एक नजर मार लेते हैं, हो सकता कोई इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो सील सी सब रूल 1 ऑफ रूल 4, रूल 4 हमने पढ़ लिया था। एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑब्लिक क्रेडिटर्स, ठीक है। दोनों चीजें आ गई इसमें, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो इसके साथ ना फॉर्म भी पढ़ लेना चाहिए। टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर चैप्टर 2 और पार्ट 2, और अंडर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 2। दो लिखा, क्या लिखा? चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 या चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 2। अब चैप्टर 4 कौन सा है आपका? फास्ट ट्रैक है। तो चाहे फास्ट ट्रैक हो चाहे नॉर्मल सीआईआरपी हो, दोनों के लिए फॉर्म एक ही है, ठीक है। और फास्ट ट्रैक किस किस में है? वो किसी लिमिटेड केसेस में है। छोटी कंपनी जो होती हैं, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो चाहे वो स्टार्टअप हो, या फिर आपका जो एसेट्स है दे डू नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, तो उस केस में फास्ट ट्रैक प्रोसेस होता है, ठीक है। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो दोनों के लिए फॉर्म एक ही है, ठीक है। और आप इसमें से काट दो जो एप्लीकेबल नहीं है। अंडर सेक्शन 7 हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। रेज रूल 4 भी हम पढ़ के आए हैं अभी। आपने एप्लीकेशन लगानी किसको? एनसीएलटी को। इन द मैटर ऑफ, नाम दे दोगे आप सीडी का। सब्जेक्ट क्या दोगे? एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआईआरपी। नेम्स ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स hereby submit application to initiate CIRP in the matter of, ये name of the CD, details for the purpose of this application are set out below। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट 1
पार्ट 2, पार्ट 3। शुरू शुरू में जब एग्जाम शुरू हुआ, ये भी पूछ लेता था कि फॉर्म 1 के पार्ट में किसकी डिटेल आएगी। आजकल वो नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पार्ट 1 में कौन सी डिटेल आती है, पार्ट 2 में कौन सी डिटेल आती है। नॉर्मली जो एप्लीकेंट होता है उसकी डिटेल सबसे पहले आती है, ठीक है। तो पार्ट 1 में किसकी डिटेल आएगी, एप्लीकेंट की। अगर एप्लीकेंट एक से ज्यादा है तो क्या सबकी डिटेल आएगी, यस, ठीक है। जैसे मैंने बताया 25-25 लाख के 4 हैं, तो चारों की डिटेल आएगी। प्रोवाइड डिटेल्स फॉर ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर मेकिंग द एप्लीकेशन। अच्छा, होम बायर है। अब होम बायर में तो हमने लिखा भाई नॉट लेस देन 100, तो क्या 100 की डिटेल दोगे आप इसमें, क्या करोगे। मान लीजिए होम बायर है। Yeah, on behalf of 100, there will be one representative. So वन रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो ठीक है, तो डिटेल सबकी जाएगी या सबकी डिटेल नहीं जाएगी, ये बताइए, ये सर नो। I think should be. बिल्कुल, एक एनेक्सर लगा दोगे आप। Hmm. भाई Yes, sir. देखिए, मान लीजिए 5000 होम बार्स है, ठीक है। आप 5000 होम बार्स है तो कितने लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, 100 या नॉट लेस देन 10%। 10%. तो मतलब मिनिमम कितने, 100 या 500 में से विच एवर इज लेस, तो 100 लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये, क्या 100 की डिटेल जाएगी, आंसर इज यस, 100 की डिटेल जाएगी। इसमें नहीं भरोगे आप, इसके एनेक्सर में भर दोगे, एज पर डिटेल, एज पर एनेक्सर, डिटेल तो जाएगी ना। Yes, sir. नेम ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अगर वो कंपनी है। फाइनेंशियल क्रेडिटर इंडिविजुअल हो सकता है क्या, फाइनेंशियल यस क्रेडिटर यस इंडिविजुअल यस। हो सकता है या सिर्फ कंपनी होना ही जरूरी है। नहीं, इंडिविजुअल भी हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, हाँ, क्योंकि आप जिसके अगेंस्ट में लगा रहे हो वो कॉर्पोरेट पर्सन होना है, ठीक है। वो कंपनी या एलएलपी होगी। फाइनेंशियल क्रेडिटर तो कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो पर्सन होगा बेसिकली, है ना। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू सबमिट एप्लीकेशन ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। यहां पर उसका ऑथराइजेशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके होम बायर्स हैं, अब होम बायर किसी को ऑथराइज कर देंगे तो उसका नाम यहाँ पर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। मतलब ये, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन इट्स बिहाफ। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है या कुछ है तो उसके बिहाफ पर कौन एक्सेप्ट करेगा, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मतलब एक एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई ने कंपनी को पैसे दिए, क्या वो एनआरआई एप्लीकेशन लगा सकता है। एक कंपनी ने डिबेंचर से चुकी है, उसमें एनआरआई ने भी अपनी एप्लीकेशन लगा दी, उसको भी डिबेंचर अलॉट हो गए। अब कंपनी पैसे नहीं दे रही, तो क्या वो एनआरआई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, या वो यस मिल सर। करके लगा सकते हैं, यस सर। नो, तो आईपी लगा सकता है सर, अगर मेंबर हो तो। है। नहीं मैं लगा बताऊं? सकता सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। एक कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए, हम्म, उसमें कुछ एनआरआई ने भी डिबेंचर्स लिए, ले सकते हैं, है ना। अब पेमेंट नहीं कर रही कंपनी, तो क्या वो जो एनआरआई है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यस और नो। यस सर। यस सर। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव लगा सकते हैं। अब वो एक ही बात है, एप्लीकेशन तो सबके ब्याह पर कोई लगाएगा, है ना। लेकिन ये है कि वो नॉन रेजिडेंट के बजाय किसी रेजिडेंट का एड्रेस यहां पर जाएगा, ये मतलब है कॉलम नंबर 6 में, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। वो मतलब वो कनाडा में जाता है तो कनाडा में तो नहीं जाएगा ना प्रोसेस सर्विस का, तो वो यहाँ का नाम देना पड़ेगा उसको, कोई इंडियन का, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 2 में आ गया पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। इसको पढ़ने का पर्पज ये है कि जब आप एक दो बार पढ़ लोगे ना तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ सीडी के पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, पहले आपने एप्लीकेंट के दे दिए, पार्ट 2 में आ गए सीडी के पर्टिकुलर्स,
ठीक है। अब यहां देखिए, डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फॉर द नोटिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 55(2) फास्ट ट्रैक का है ना, क्योंकि फास्ट ट्रैक का भी सेम फॉर्म है तो इसलिए फास्ट ट्रैक की यहां पर बात हो रही है। पार्ट 3, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड आईआरपी, पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल डेट, ये 4 हो गए हमारे। उसके बाद में पार्ट 5 में ये पूरी डिटेल आ गई, क्या आ गया, पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इफ एनी, द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन, इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू एज पर द creditor, attach a copy of a certificate of registration of charge issued by the registrar of companies if the corporate debtor is a company। ठीक है, मतलब ये आपने लोन दिया था, कंपनी ने अपने एसेट्स के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया था, तो उस चार्ज का आप सर्टिफिकेट ले लोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, और वो ये यहां पर लगाओगे इसके साथ में। ठीक है, अगर कोई आपके पास ऑर्डर है कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का या आर्बिट्रल पैनल का एडजुडिकेटिंग ऑन द डिफॉल्ट इफ एनी, अटैच ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी क्या करती है, फॉर्म डी इशू करती है आपको रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो भी आपको लगाना है। अच्छा, मान लीजिए आपने दिया था लोन और आपकी हो गई डेथ, तो उस केस में आप सक्सेशन सर्टिफिकेट भी लगाओगे, या फिर प्रोबेट ऑफ विल लगाओगे, या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट डिग्री, है ना। द लेटेस्ट एंड कंप्लीट कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्टिंग ऑल अमेंडमेंट्स एंड वेवर्स टू डेट, ये सारी चीजें आप लगाओगे। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट एज अवेलेबल विद एनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन ए बैंकर्स बुक, लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच, ये सारी चीजें आपको लगानी है। ठीक है, copies of all documents, written communication by the proposed IRP, proof that the specified application fees has been paid। Annexer 4, अगर एप्लीकेशन जॉइंटली लगाई है तो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन दिस फॉर्म शैल बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द जॉइंट एप्लीकेंट्स। अभी जो क्वेश्चन हम कह रहे थे ना कि भाई जॉइंट एप्लीकेशन लगाओगे तो सबके पर्टिकुलर्स जाएंगे, along with a copy of authorization to the financial creditor to file and act on this application on behalf of all the applicants। उसके बाद प्रूफ ऑफ सर्विंग ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द सीडी एंड टू द बोर्ड। इसके साथ में, इस एप्लीकेशन के साथ में आप क्या लगाओगे कि मैंने सीडी को भी कॉपी दे दी है और इसकी, और बोर्ड को भी कॉपी दे दी है। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्म 2 भी आपको पहले से साइन करवा लेना और इसके साथ में लगाना है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, रिटर्न कम्युनिकेशन, कि भाई मेरे पास ये असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर ये मेरे अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। ये हमारा आपका आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे, इसकी कॉपी पहले दोगे सीडी को और बोर्ड को, फीस जमा कराओगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके तब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया अपना। अब हम चलते हैं सेक्शन 8। ये अभी 7 में थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो वहां कवर हो ही गया ये बात। ये क्या कहता है, दी फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, वो फॉर्म डी इशू होता है। नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये भी रूल 9 भी हमने पढ़ लिया। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, रेगुलेशन 2A, अगर और कोई इंफॉर्मेशन जो कि स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड है, ये भी देख लेते हैं रेगुलेशन 2A क्या है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन जानी है। रेगुलेशन 2A क्या है, ये रेगुलेशन 2A है, ये भी आपको देना है। रूल्स तो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये रेगुलेशन भी पढ़ लेना है। क्या रेगुलेशन कहता है ये कहता है
फाइनेंशियल क्रेडिटर में फर्निश एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। पहला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द रेलेवेंट अकाउंट इन द बैंकर्स बुक, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो उस केस में क्या देना है आपको, ये भी देना है, ठीक है। तो 2A में आ गया आपका, या तो बैंकर्स बुक की कॉपी दीजिए या ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्राइब्यूनल दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 7। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कितना दिन है, 14 दिन का टाइम। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 days of the receipt of the application under subsection 2 ascertain the existence of a default from the records of an information utility or the basis of other evidence furnished by the financial creditor। तो 14 दिन के अंदर वो क्या करेगी, वो देखेगी कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। Provided that if the adjudicating authority has not ascertained the existence of default। ascertain का भी मतलब है, ascertain का मतलब क्या है, ascertain का मतलब पता लगाना। तो ascertain के लिए हो सकता है वो सीडी को भी नोटिस दे दे कि भाई ये तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा रहा है, तो सीडी से पूछ सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं तुमने पेमेंट कर दिया, बताओ। वो बताएगा जी मैंने तो पेमेंट कर दिया, ये है, ये बनता ही नहीं है फलाना टाइप का नाम, ये तो डेट ही नहीं है। डेट भी तो होना चाहिए ना। वो कहे ये तो डेट ही नहीं है, हमने तो दोनों ने पार्टनरशिप की थी कि भाई आधे आधे पैसे लगाएंगे, जो आएगा प्रॉफिट बांट लेंगे, तो इक्विटी है ये तो, है ना। अगर डेट ही नहीं है तो एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी, है ना। Ascertain the existence of a debt from the record of an information utility or on the basis of other evidence furnished by the financial creditor under subsection 3, ठीक है। Where the adjudicating authority is satisfied। अब दो बातें होंगी, या तो adjudicating authority को लगेगा भाई मामला सही है, तो फिर वो क्या कर लेंगे, अगर डिफॉल्ट हुआ है और एप्लीकेशन कंप्लीट है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है आईआरपी के अगेंस्ट में, तो वो एडमिट कर लेगी। या मान लो डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, या एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं है, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो वो फिर रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने से पहले 7 days का उनको टाइम देंगे टू रेक्टिफाई दी डिफेक्ट। और जब डेट ऑफ एडमिशन है तब से क्या होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दो ऑर्डर पास कर सकती है, या तो एडमिट करने वाला या रिजेक्ट करने वाला। अगर एडमिट करा तो किस किस को कॉपी देगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर कॉर्पोरेट डेटर को नहीं बताने वाली, वो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को बताएगी, ठीक है। कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन एट द केस। तो ये हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमने दोनों सेक्शन मिला करके पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो ये डिस्प्यूट वाला जो पॉइंट है, डिस्प्यूट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कहां पढ़ी, सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 में, 3 में, 3 6 में या 5 6 में, सेक्शन 5 सब सेक्शन 6, 5 6 में सर, सेक्शन 5 सब सेक्शन 6, ठीक है। 6। डिस्प्यूट की हमने डेफिनेशन पढ़ी। डिस्प्यूट किस किस चीज का हो सकता है, या तो डेट, अमाउंट ऑफ डेट का ही डिस्प्यूट हो सकता है। एक आदमी कहता है जी डेट है, दूसरा कहता है डेट नहीं है। या फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो कह रहा है जी ये पैसे मांग रहा है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। या तीसरा, कोई ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन या वारंटी, मेनली है, कुछ और भी हो सकते हैं क्योंकि वर्ड लिखा है इंक्लूड्स। अब सेक्शन 8 और सेक्शन 9। An operational creditor may, on the occurrence of a default, deliver a demand notice। डिलीवरी भी जरूरी है, डिमांड नोटिस देना पड़ेगा पहले। सेक्शन 7 में कोई ऐसा डिमांड नोटिस की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। सेक्शन 7 में क्या है, डिफॉल्ट हुआ, आपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम दिया, डॉक्यूमेंट लगाए, एप्लीकेशन फाइल। यहां पर आप सीधे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाओगे, पहले क्या करोगे, एक डिमांड नोटिस दोगे। किस चीज का, ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट और कॉपी ऑफ एन इनवॉइस।
अगर आपने इनवॉइस रेज किया हुआ है तो इनवॉइस की कॉपी दोगे, अगर आपने इनवॉइस रेज नहीं किया तो डिमांड नोटिस की कॉपी दोगे। ठीक है। डिमांडिंग पेमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, तो आपके रूल 5 देखना है इसके लिए। तो एक बार रूल 5 देख लेते हैं। रूल 5 क्या कहता है? ये हमारा रूल 5, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल मेक एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन देगा फॉर्म 5 के अंदर। ठीक है। अकॉम्पनीड विद डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और इसके साथ फीस लगाएगा 2,000 रुपए की, जैसे उसके लिए फॉर्म 1 था फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 5। 5। ठीक है। अब उससे पहले आपको रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? डिमांड नोटिस। तो डिमांड नोटिस में क्या कहता है ये? डिमांड नोटिस में कहता है एन ऑपरेशनल क्रेडिटर shall deliver to the corporate data the following documents, namely demand notice in form 3 और copy of invoice in form 4। इन दोनों में फर्क क्या है डिमांड नोटिस और इनवॉइस में? कई बार ऐसा होता है कि आपने इनवॉइस रेज नहीं किया होगा, नहीं। जैसे आप सर्विसेज तो पूरे साल देते रहते हो, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सर्विसेज तो पूरे साल देते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने इनवॉइस रेज किया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट हो गया, वो पैसे नहीं दे रहा है ना, आप सर्विस रेंडर करते जा रहे हो, तो आप उस केस में क्या करोगे? डिमांड नोटिस दोगे। ठीक है। तो डिमांड नोटिस का फॉर्म नंबर है 3। एक बार फॉर्म नंबर 3 देख लेते हैं कि फॉर्म 3 क्या कहता है। ये है हमारा फॉर्म नंबर 3। तो फॉर्म 3 क्या कहता है? फॉर्म 3 कहता है अंडर रूल 5, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, फ्रॉम कहां से आया है ये है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑपरेशनल डेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका डिमांड नोटिस इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट। दिस लेटर इज ए डिमांड नोटिस इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। ये है पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑपरेशनल डेट, total amount of debt, details of transactions on account of which the debt fall due, and the date from which such debt fell due, amount claimed to be in default, and the date on which the default occurred. Attach the working for computation of default in a tabular form. फिर particulars of security held if any, details of retention of title arrangements in respect of goods to which the operational debt refers। ठीक है। A record of default with the information utility, provision of law, contract or other document under which the debt has become due, list of documents attached. If you dispute the existence or amount of unpaid operational debt, please provide the undersigned within 10 days of the receipt of this letter of the pendency of the suit or arbitration proceedings in relation to such dispute filed before the receipt of this letter or notice। मतलब अगर डिस्प्यूट हुआ है तो आप मुझे ये बताओ कि ये लेटर या नोटिस रिसीव होने से पहले वो डिस्प्यूट फाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर आपको डिमांड नोटिस मिला और उधर आपने डिस्प्यूट फाइल कर दिया, है ना। मतलब आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई डिस्प्यूट फाइल्ड है तब तो ठीक है, और अगर आपको लगता है इफ यू बिलीव दैट द डेट हैज बीन रीपेड बिफोर द रिसीट ऑफ दिस लेटर, भाई आपको लगता है हमने पेमेंट कर दी, तो उसका कॉपी दे दो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा या अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड दैट द ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है। द अंडरसाइंड हियर बाय अटैचेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कि भाई नो रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट रेज्ड, वहां पर कोई रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। The undersigned request you to unconditionally repay the unpaid operational debt in default in full within 10 days from the receipt of this letter। तो आप ये कह दोगे भैया 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, और नहीं तो वी शैल इनिशिएट ए CIRP। तो सीधा CIRP शुरू नहीं होगी, पहले आप ये नोटिस दोगे। ठीक है। और उसको 10 दिन का टाइम दोगे। अगर 10 दिन में वो नहीं करता तो फिर आप कर सकते हो फाइल। ये फिर फॉर्म नंबर 4 आपका डिमांड नोटिस का फॉर्म है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपने दे दिया अनपेड अमाउंट, आप दे दोगे यहां पर एज रिफ्लेक्टेड इन द इनवॉइस अटैच टू दिस।
फिर फॉर्म 5 है, फॉर्म 5 आपका एप्लीकेशन है भाई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बारी। और फिर फॉर्म 6 तो एप्लीकेशन बाई कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, वो बाद में देखेंगे। तो बेसिकली बात क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में आप पहले नोटिस देते हो, डिमांड नोटिस ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट, 10 दिन तक वेट करते हो, उसके बाद में फिर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो फॉर्म 5 में अलॉन्ग विद फीस। बाकी की जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी।